ہمارے ہاں پاکستان میں یہ اسٹائل ہے, علم میں زیرو, اور بات ایسے کریں گے جیسے انہی کی رائے ہے قرآن و سنت, باقی سارے بیوقوف ہیں. اسے کہتے ہیں جہل مرکب, کہ ایک آدمی جاہل ہو مگر اس کو اپنی جہالت کا علم نہ ہو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ چیزیں آپ کو پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گی. کوئی بیٹھ کر حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیتا ہے, کوئی بیٹھ کر. تو یہ جو فرقواریت پھیل رہی ہے, یہ اس لیے نہیں پھیل رہی ہے کہ مذہب پھیلا رہا ہے, یہ اس لیے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکومت کنٹرول کرتی ہے. گلگت میں کنٹرول کیا, شیعہ سنی لڑائی ہو رہی تھی, حکومت نے کنٹرول کیا ہے. وہاں مجھے خود ایک ابھی سفر کے دوران ایک پتہ نہیں کیا ان کا عہدہ تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. گلگت میں کوئی ایم این اے تھے یا کوئی اور چھوٹے کسی عہدے پر تھے. سفر کے دوران میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا شیعہ سنی لڑائی کو ہم نے وہاں ایسے کنٹرول کیا ہے کہ جس نے شیعہ کو مارنے مورنے کا حکم دیا, کسی سنی عالم نے اس کو فوراً پکڑا ہے, اور کسی شیعہ نے اگر صحابہ کو کھلے عام گالی دی یا کوئی ایسی بات کی سنی عالم کو یوں کر دو یوں کر, اس کو فوراً کیا کر دیا, جیل میں. کہہ رہے 15-20 اس قسم کے مولویز جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے ہیں, شیعہ سنی لڑائی کیا ہو گئی, ختم. سمجھ آ رہی بات؟ تو گورنمنٹ خود ہی نہیں کر رہی, کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, جو مرضی بیٹھ کر جو کچھ کرتا رہے لوگوں کے. ابھی دیکھو میں نے یزید کے بارے میں جو بیان نہیں کیے وہ پوسٹیں بنا بنا کے لوگوں نے چلائی ہوئی. ایک پوسٹ میرے بارے میں چل رہی ہے کہ مفتی طارق مسعود مدظلہ العالی, بڑے القاب لگا کے نا, جیسے کوئی میرا مرید یہ پوسٹ بنا رہا ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا ہے کہ یزید جنتی ہے کیونکہ وہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا, وہ فلانا تھا وہ فلانا تھا, اور وہ پوسٹ بنا کے فیس بک پیج پہ ڈال دی. نیچے لوگوں کو کمنٹس میرے خلاف, حالانکہ میں نے ایسا کوئی بیان بولو نا نہیں دیا. میں نے ایسا کوئی, نہ میرا یزید کے بارے میں یہ نظریہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ جذبات کو مشتعل کرنا. تو گورنمنٹ ہے جو ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکتی ہے. گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی تو بھائی یہ سب پھر فسادات ہوں گے. اب حکومت کیوں نہیں کرتی اللہ ہی جانے, اللہ ہی جانے. یا تو وہ چاہتی ہے کہ مولانا لوگ آپس میں لڑیں اور لوگ تماشا دیکھیں. میں نے کتنے بھی بڑے بڑے علماء, سنجیدہ علماء دیکھے ہیں, ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ دیکھا ہے, وقار دیکھا ہے, بات بڑے مدلل سلیقے سے کرتے ہیں. ایک درمیان میں بات آئی ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ جو اختلافی مسائل ہیں نا, آج کل ہر آدمی ان سے ڈسا ہوا نہیں ہے, اس لیے میں جمعے کے ممبر پہ یہ باتیں کرتا نہیں ہوں. ان کے بارے میں اگر کسی نے واقعی ریسرچ کرنی ہو تو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب, جن کو امام اہل سنت کا لقب دیا گیا ہے, ان کی کتابیں پڑھا کریں. آپ کو پتا چلے گا کہ ریسرچ کسے کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو گوجرانوالہ میں تھے, ان کا انتقال ہو گیا 2009 میں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تقلید کے موضوع پر ان کی کتاب ہے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جائے اس پر ان کی کتاب ہے. ان کی ریسرچ ایسی ہوتی ہے, ایسی. ان کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے. اچھا وہ تو کمپیوٹر کا دور بھی نہیں تھا, نیٹ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. وہ اتنی شاندار ریسرچ کرتے ہیں جب کسی چیز پر کرتے ہیں. ان کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھ کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک صفحہ لکھنے میں 2 سے 3 مہینے کم از کم لگے ہوں گے, کم از کم 2 سے 3 مہینے. حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. وہ ایسے ریسرچ کے جیسے پتا چلا نا ترکی کے کسی کتب خانے میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے, تو جہاز کا ٹکٹ کرا کے کسی کو ترکی بھیجا اور کہا کہ وہاں سے اس کتاب سے یہ عبارت تلاش کر کے مجھے بتاؤ کہ ہے کہ نہیں ہے. اس طرح سے وہ ریسرچ کیا کرتے تھے. اور حافظہ اتنی بلا کا کہ جب وہ حوالے دیتے تھے, کیونکہ یہ یوٹیوب کا دور نہیں تھا نا, تو ظاہر ہے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوئی. حافظہ اتنی بلا کا کہ حدیث کا نمبر نہیں, صرف نمبر نہیں, کتاب کا صفحہ نمبر اور سطر نمبر تک بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں سطر پہ یہ لکھا ہوا ہے. تو جو چاہتے ہیں نا کہ یہ ان چیزوں میں پڑھے, جو اختلافی مسائل ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے, مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی, ہمارے علماء دیوبند پہ جتنے الزامات لگے ہیں نا کہ وہ فلاں نے شرک کیا, فلاں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, فلاں نے اپنے نام کا یہ کروایا, یہ جو الٹے سیدھے الزامات لگتے ہیں,
मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की किताब है रहिमहुल्लाह ताला, उनकी किताब है इबारात अकाबिर, वो जरूर पढ़े। और अगर आपके पास ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है तो फिर किसी की भी ना सुने, फिर एक तरफा सुने और उसका जवाब ना सुने। ये फिर क्या है? ये तहकीक नहीं है, ये अंधी तकलीद है कि आप इधर के सुन रहे हो और उसके जवाब में जो कुछ पहले से लिखा जा चुका है वो आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये इसकी अलामत है आप अंधे मुकल्लिद हो। आप ना, वही लेवल की बात है ना, लेवल है रिसर्च, लेकिन हकीकत में क्या हो रही है? तकलीद, और वो भी अंधी। तो मैं अब असल मौजू की तरफ आता हूं। अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा था, बहुत बड़े आलिम बर्रे सगीर में गुजरे हैं। तो मैं यस कर रहा था, जो लिबरल लोग हैं ना, एथियस्ट, उनका लेवल क्या होता है कि आजाद। मजहबी लोग आपको पाबंद बनाते हैं, मौलवी लोग कहते हैं तलाक हो गई, ये फलाना हो गया, तो ढिमकाना हो गया, ये हो गया, तो वो हो गया, तो वो आपको स्ट्रेस में ले जाते हैं। हालांकि खुदकुशी का रेशो मजहबी लोगों में सबसे कम है, स्ट्रेस का रेशो मजहबी लोगों में सबसे, डिप्रेशन का मरज जो आया है ना हमारे, हम देखते थे बचपन में हमें डिप्रेशन का कोई मरीज नहीं नजर आता था, कोई लाखों में कोई एक था जो डिप्रेशन की गोलियां खाता था। जैसे जैसे हमारी कौम मजहब से दूर हो रही है, डिप्रेशन का मरज, अरे बोलो यार, फैल रहा, कम नहीं हो रहा, स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। और जिन मुल्कों की ये लोग कहते हैं ना दुनिया में कामयाब तरीन मुल्क, उनमें स्ट्रेस और डिप्रेशन सबसे ज्यादा है, हर दूसरा आदमी गोली खा रहा है। तो ये क्या है लेवल कि मजहब नहीं होगा तो, हालांकि होता ही है। ये डिप्रेशन में क्यों जाते हैं ये भी आपको बता दूं कि जब आप अल्लाह की गुलामी इख्तियार नहीं करते तो ख्वाहिशात के गुलाम, मजहबी आदमी अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखता है। वो कहते हैं अल्लाह ने इसकी इजाजत दी है, इसकी नहीं दी, जिसकी नहीं दी उसको छोड़ देता है वो। तो ख्वाहिशात पे क्या होता है? उसको कंट्रोल, तो वो आजाद होता है। वो जब चाहता है अपने नफ्स की मानता है, और जब चाहता है नफ्स की बात को मुस्तरद हटा देता है, दफा हो यहां से, नहीं मानता, क्या कर लेगा? अभी कुछ दिन पहले एक साहब ने मुझे निस्वार की बहुत कोशिश की खिलाने की। मैंने कहा यार मेरा दिमागी काम होता है, मैं थक जाता हूं, मुझे फिर नींद आना शुरू होती है, मुझे जागना पड़ता है, मैं क्या करूं? मैंने चाय छोड़ दी थी 1 साल के लिए, बिल्कुल छोड़ दी। हालांकि मैं चाय का ऐसा धत्ती था, कई कई कप और कड़क चाय पीता था, तो मैंने इरादा किया चाय छोड़ दूंगा मैं, ऐसी की तैसी, कोई फायदा नहीं है। जो मुझे मुजाहिदा करना पड़ा वो मैं ही जानता हूं। 10 दिन तक जो कलाबाजियां खाई है ना मैंने चाय के बगैर, वो मैं ही जानता हूं, लेकिन मैंने कहा नहीं पीऊंगा। 10 दिन के बाद नशा तो उतर गया, मगर किसी को चाय पीता देखता था तो दिल चाहता था एक थप्पड़ लगा के इससे चाय का कप छीन लो। इस पे भी कंट्रोल किया अल्हम्दुलिल्लाह। होते 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 नसीयम मनसिया हो गए। 4 महीने के बाद बिल्कुल ख्वाहिश खत्म चाय की। 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन टेंशन ये कि जिधर जाओ चाय रख रहे हैं, चाय से मना कर रहे हो लस्सी लाके रख रहे हैं। अबे लस्सी कौन पिएगा भाई? जहां जाओ जिधर जाओ, खास तौर पर केपीके में जो हमारे पठान भाई हैं बड़े मेहमान नवाज होते हैं, ये गन पॉइंट पे खिलाते हैं आपको। भाई नहीं पीनी, मैं ना चाय पीता हूं, ना कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, ना मुझे लस्सी, मुझे भूख ही नहीं लग रही, मैं लस्सी पी के क्या करूंगा भाई? तो खाना कौन खाएगा फिर अगर लस्सी पी ली? तो वो इतना मुजाहिदा कि हर एक से लड़ना, हर एक से लड़ते 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 बिलाखिर हमने कहा यार लस्सी से तो कम से कम बेहतर है कि 2 घूंट चाय के पी लो, ये भी खुश रहेगा। क्योंकि चाय नहीं पे तो आइसक्रीम लेकर आ रहा है, कोई क्या लेकर आ रहा है। वो 2-3 चस्के लेने शुरू किए, होते होते फिर वही हो गया। फिर क्या हो गया? तो दोबारा चाय पे आ गए। अब सोच रहा हूं कि कैसे फिर दोबारा छोड़ने के मूड में हो कि ये कोई फायदे की चीज नहीं है चाय। अब छोड़ने के लिए मैंने किसी अपने पठान दोस्त से मशवरा किया, मेरे बड़े जिगरी दोस्त हैं। मैंने कहा यार इस कमबख्त से जान छुड़ानी है चाय से दोबारा। उन्होंने कहा निस्वार पे आ जाओ। अब उन्होंने निस्वार की पुड़िया लेके जो मुझे फजाइल बयान किए कि ये फायदा, दिमाग बेदार, कोई भी मुताला करोगे नींद नहीं आएगी, ये वो वैसे फजाइल। मैंने कहा भाई यार ये तो सबसे कम दर्जे का नशा है चाय, इस पे आ गए तो फिर निकालेगा कौन हमें इससे? दुआ करें अल्लाह ताला मुझे बचा के रखे, और भी दोबारा छोड़ेंगे इंशाल्लाह हिम्मत करके। चाय को पीने की चीज नहीं है, इन चीजों से वक्ती फायदा होता है। ये जो लोग कहते हैं ना चाय पी के मैं फ्रेश हो जाता हूं, भाई आप सुस्त हुए इसलिए थे कि चाय नहीं मिली थी आपको,
समझ में आ रही है बात? अगर चाय पीने के आदी ना होते तो ना थकावट होती और ना चाय पी के उसको दूर करने की जरूरत होती। अगर ये आपको चाय से थकावट दूर होती नजर आती है तो हीरोइन जी से पूछो, कहेगा हीरोइन पी के तो एकदम थकावट दूर, 6 महीने की थकावट दूर। तो जो दलील उसकी है ना, उसको भी हम यही कहेंगे, भाई ये थकावट तुझे हो इसलिए कि तू इसका आदी है। तो जो नेचुरल लाइफ है ना इंसान की, वो लाइफ ये है कि थकावट हो रही है तो सो जाओ। समझ आ रही है बात? फिर उठो, फिर काम करो, जो अल्लाह ने आपके जिम्मे काम लगाया वो काम करो। फिर थकावट होती है, फिर थोड़ी सी 5-10 मिनट की नींद ले लो, ये नेचुरल है। हम उसको छुट्टे लगा लगा के दूर कर रहे होते हैं। कोई सिगरेट पी के दूर कर रहा है थकावट, कोई पान खा के दूर कर रहा है, कोई गुटखा खा के, कोई मुख्तलिफ तरीकों से दूर कर रहे हैं। तो ये भी अच्छे लेबल हैं। समझ में आ रही है बात? ये भी चाय के फजाइल पे एक अच्छा सा लेबल लगा दिया, थकावट दूर करती है। और सिगरेट वाले ने उस पर लगा दिया, यार सारी मेरी टेंशन इस धुएं में क्या होती है। सिगरेट वाले से बोलो, कह रहे हैं हमारे एक दोस्त से इतने आदि इफ्तारी के वक्त सिगरेट पी रहे हैं। वो पहले एक पकौड़ा हल्का सा सुन्नत पूरी करने के लिए रखा, उसके बाद मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई? कह रहे हैं यार क्या करें, मजबूरी है। तो और ये सब चीजों को जो मुआशरे में राइज किया है ना अंग्रेजों ने, इन पे बड़े अच्छे लेवल लगे। सिगरेट जो है, जब सिगरेट कंपनियां बनी है और तंबाकू पे पब्लिक को डाला है, तो ये भी डॉक्टरों ने डाला है। आप 100 साल पुराने डॉक्टरों की तहरीरें आपको मिल जाएंगी। लंदन से जो अखबार छपा करते थे उसमें डॉक्टरों की तहकीक होती थी, सिगरेट के 20 फायदे, थ्रॉट इन्फेक्शन दूर करती है, कब्ज खत्म करती है, और पता नहीं क्या क्या करती है। उसके बाद जब कैंसर होना शुरू हुआ लोगों को, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, वो डॉक्टर खरीदे हुए थे, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते, तो कंपनियों ने खरीदे थे कि यार ये इसकी पब्लिसिटी करो, तुम्हें पैसे देंगे इस। तो इसी तरह ये चाय भी अंग्रेज मुफ्त आके बांटता था। बर्रे सगीर में अंग्रेज जो है ना, चाय की पत्ती फ्री में बांटता था कि इनको चस्का लगाओ, फिर ये हमसे खरीदेंगे। तो इनमें कोई फायदा नहीं है इन चीजों में। तो एक बड़े डॉक्टर आए थे अभी अमेरिका से, मैं बहुत बड़े मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये चाय जो है ना मैं छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या करोगे छोड़ के? मैंने कहा छोड़े, फजूल चीज है। उन्होंने कहा देखो दुनिया चर्स पी रही है लोग हीरोइन पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आप थोड़ी सी चाय पी रहे हो तो क्या होता है? अब डॉक्टर ही हौसला अफजाई नहीं करता तो फिर क्या ख्याल है? फिर आदमी कहता है नफ्स शैतान कहता है पीते रहो जब डॉक्टर कह रहा है। लेकिन बहरहाल अच्छी चीज नहीं है, दोबारा इंशाल्लाह छोड़ेंगे। लेकिन छोड़ने के टाइम कौन सा होना चाहिए? मसरूफियत इतनी, अभी छोड़ देंगे तो 10 दिन तक कुछ काम ही नहीं होता, फिर वो पड़े रहेंगे, जो आएगा जो दिल करेगा उसको थप्पड़ उप्पड़ लगाओ, खाम खामे को पिट आ जाएगा बिला वजह। 10 दिन के बाद जाके आदमी नॉर्मल हालत में आता है ना। 10 दिन तक क्या होगा? बस यही सोच सोच के मरीख पर चला जाऊं 10 दिन के लिए, तो फिर इंशाल्लाह खैर। तो मैं ये कर रहा था, देखो लेबल अच्छे लगा दिए उन्होंने, स्ट्रेस खत्म हो रही है, टेंशन खत्म हो रही है, हालांकि टेंशन खत्म नहीं हो रही। मजहब से आप दूर रहेंगे ना तो ख्वाहिशात के गुलाम बन जाएंगे। फिर आपके लिए अपनी ख्वाहिशात से रिवर्स होना बड़ा मुश्किल। दूसरी बात यह कि जब इंसान अल्लाह का गुलाम बनता है तो ख्वाहिशात पे कंट्रोल इसलिए भी होता है कि उसको पता है कि इसमें मुझे अजर मिलेगा। रब के लिए कुर्बानी दे रहा हूं, जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए कुर्बानी देना आसान, जिससे मोहब्बत नहीं होती उसके लिए कुर्बानी देना बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए कुर्बानी देना। दूसरा तबका जो मजहब को मानता है लेकिन वो भी बड़े अच्छे लेबल लगा के इस्लाम की मुखालफत कर रहा है। वो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, मगर उन्होंने भी लेबल क्या लगाए हुए हैं बड़े अच्छे। वो कैसे? वो सारा दिन इस्लाम की मुखालफत करते रहते हैं बैठकर, ये कहकर के ये औरतों पे जुल्म सिखाता है और ये जनाब वो मैं दोबारा टॉपिक नहीं छेड़ूंगा, ये जो है वो जिहाद का हुक्म देता है, ये लड़ने का हुक्म देता है। इस 2-3 चीजें उनको मिली हुई हैं, बस उन्हीं को लेकर घुमाते रहते हैं ठीक है। जब किसी गैर मुस्लिम से बात हो ना इस्लाम के बारे में, 2 इतराज है। मर्द की 4 शादियों की बात भी करता है, याशी सिखाता है, 4 शादियां सिखाता है, और जिहाद का हुक्म देता है, कुरान में जगह जगह जिहाद करो। और मर्द को कहता है कि औरत को कहता है कि वो मर्द के मातहत है, तो औरत को मर्द का गुलाम बनाता है। ये विमेन राइट्स के क्या है? खिलाफ। तो लेवल कैसा लगाया जा रहा है? बोलो ना, इंसानी हुकूक के, इंसानी हुकूक के खिलाफ। फिर वो मौलानाओं के पीछे खास तौर पे लगते हैं कि मौलवी मुतशद्दिद होते हैं, ये यूं करते हैं, ये यूं करते हैं। तो ये भी लेबल है। ऐसे है जैसे एक आदमी ने चीनी की बोरी पे चावल लिखा हुआ था दुकान में ना, किसी ने पूछा इसके अंदर है चीनी, लिखा हुआ चावल है। कहता है मक्खियों को धोखा देने के लिए, मक्खियां बहुत बैठी हैं तो हमने क्या लिख दिया, तो मक्खियां धोखे में आएंगी। जो लफ्ज पढ़ेगा ना, लेबल देखेगा, वो धोखे में आएगा।
پوائنٹ کی بات ہے, اس کو سمجھیں. جو لیبل دیکھے گا وہ دھوکے میں آئے گا, لیکن جو حقیقت کو جان